चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फंडामेंटल चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, सो लेट अस डू इट इन डिटेल्स। जहां पे भी नहीं समझ में आए प्लीज पूछना, ठीक है? सो अगेन, टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड where did the origin of acid come from. Initially, a long time back, people thought acidic substances are substances, matlab acids are substances which are sour in taste. That is the only way to understand what is an acid. Then they found कि नहीं, खाली ऐसा ही नहीं है कि they are sour, इसके अलावा भी एसिड का कुछ और प्रॉपर्टीज है. One of those properties is that most acids contain hydrogen atom. I'm talking about the initial understanding. This is not the understanding as of today. ठीक है? बहुत पहले ऐसा assume किया जाता. Then what people said was कि देखो, अगर हर सब्सटेंस जिसमें एसिड है, हर सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन है, अगर वो एसिड हो जाएगा, देन CH4 मीथेन ये भी एसिड होना चाहिए, बट वी नो वो एक एसिड नहीं है. एमोनिया कंटेन्स हाइड्रोजन, ये भी एसिड होना चाहिए, वी नो इट इज नॉट एन एसिड. वाटर contains hydrogen, it also should be an acid, but we know it is not an acid. उसी तरह से NaOH contains hydrogen, it should be an acid, we also know कि this is not an acid. तो ये जो दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोजन था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू से कि एक एसिड सार होता है और हाइड्रोजन कंटेन करता है. तो साइंटिस्ट्स and research scholars, they started experimenting or digging deep into the concept of acid until they got better answers. The next meaningful answer of what an acid is was, they say an acid is a substance which when dissolved in water liberates H plus ion. Matlab, if I dissociate HCl, if I mix HCl with water or dissolve HCl in water, it will form H plus and Cl minus. So they said an acid is a substance which when dissociated in water must definitely provide H plus. H plus क्या होता है? H plus होता है एक ion of hydrogen. If we look at H, it has one proton, one neutron, one electron. But if we take out one electron from this atom, ये वाला मान लो वो electron है. If we take out this electron from hydrogen, what will be left behind is, I made a small mistake over here, sorry. It has 0 number of neutrons. ठीक है? So if we take out one electron, तो electron भी 0 हो गया, neutron तो पहले से ही 0 था, तो all we are left behind is one proton. Therefore, an H plus ion is nothing else but a proton. ये देखो. तो इस डेफिनेशन को अगर हम दूसरे तरह से बोले, we can say all acids must liberate proton or H plus when dissociated in water. यहां तक समझ में आया सबको? हाँ सर. ये concept was discovered or put forward by a scientist called Arrhenius. Arrhenius, A-R-R-H-E-N-I-U-S, Arrhenius. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग Arrhenius concept of an acid बोलते हैं. Sometimes also called the Arrhenius concept of proton.
ओके, यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट वाज कि अगर एक एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं तो हम लोगों को दो चीज मिला था, एक तो H प्लस और एक Cl माइनस। नाउ ये H प्लस गया किसमें? पानी में गया। तो पानी में अगर H प्लस जाएगा ना तो इट विल ऑलवेज फॉर्म H3O प्लस। मतलब ये H2O plus H plus will collectively give H3O plus. So after they were successful with the concept of H plus, they said कि एक acid is a substance which dissolves in water to initially form H plus, but that H plus combines with water to form H3O plus, known as hydronium ion. Hydronium ion. ठीक है, किसी को यहां तक कुछ पूछना है? इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, टू साइंटिस्ट्स collectively discovered this. Bronsted, Bronsted and Lowry, Lowry. These were the two scientists who collectively proposed this theory. ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक जो एसिड का कॉन्सेप्ट है वो आर सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एसिड, बट देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको यहां तक का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. Those acids are called Lewis acids. This is not exactly in your syllabus, but good to know a very small concept. आप लोग को बस हम एक लाइन बताएंगे इसके बारे में कि what is a Lewis acid. This is an acid, or these are substances which do not follow the normal concept of an acid because they don't contain H plus. तो there are certain substances जिनमें H plus नहीं है, वो फिर भी एक एसिड के जैसे बिहेव करता है. Those acids are called Lewis acids, and a very popular example of that would be AlCl3. तो अगर कभी हमसे पूछ ले कि name a compound which is an acid but it does not contain H plus ion, then the answer will be AlCl3. And what kind of an acid is it? It is a Lewis acid, Lewis, Lewis acid. Next, how do you identify an acid? In order to identify an acid, we use something known as an indicator. मान लो हम आप लोग को दो ग्लास दिया, कांच का ग्लास, एक में पानी डाल दिया, एक में विनेगर डाल दिया. जस्ट बाय लुकिंग एट इट विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा पानी है, कौन सा विनेगर है? नहीं सर. तो अगर हम आप लोग को बोले कि टेस्ट बिना किए बताओ कौन सा पानी है, या फिर दोनों ग्लास हम तुम लोग को दे के बोले कि यू नीड टू ड्रिंक water out of them and leave out the other glass, तो ये चीज बिना टेस्ट किए कैसे करोगे? क्योंकि लिटमस अगर टेस्ट पेपर. करने जाएंगे तब तो हम लोग को विनेगर पीना पड़ेगा. तो हम लोग उसके लिए इंडिकेटर्स यूज करेंगे. करेक्ट. वन ऑफ द इंडिकेटर्स इज लिटमस पेपर. अब मान लो लिटमस पेपर नहीं है, सेकंड क्या ऑप्शन हो सकता है?
It is called methyl orange. Methyl orange. So वैसे let me just tell you one thing. Litmus paper must be moist. गीला होना चाहिए. Dry litmus paper काम नहीं करता है. The third option, if you want, is methyl red. Fourth and very popular is the scale. It is called pH scale. ये एक टेक्निक है जिसके हेल्प से कुछ नंबर्स के हेल्प से हम लोग बता देंगे कि वो एसिड है या बेस. आई विल कम टू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. एंड लास्टली, अगर ये कोई भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो और क्या रास्ता है? Any other suggestions? So phenolphthalein. Phenolphthalein we can use. Yes, very good. Or I'm looking for something out of the box. Sir, can we not use some lemon? Lemon. Lemon से कैसे पता करोगी? सर अगर विनेगर में डालेंगे तो बबल अप होना स्टार्ट हो जाता है, या तो बेकिंग सोडा. Okay. और क्या ऑप्शन है? Red cabbage juice. Very good. और क्या ऑप्शन है? Sir, turmeric. Turmeric is also correct. और कोई ऑप्शन? So far all the answers were correct. देखो, ये जो भी ऑप्शंस आप लोग बताए ना, कैबेज, ऑनियन, टर्मरिक, these are options which are available in our kitchen most of the time. हम लोग को उसके लिए कोई केमिकल स्टोर में जाके केमिकल खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा. So such indicators which are readily available are called olfactory indicators. ये नाम याद रख लेना. Olfactory indicators. Sir, can you repeat? Yes, I said the indicators that are readily available with us and for which we do not have to rush to any laboratory or any chemical store. Such indicators are popularly known as olfactory indicators. नाम है उनका. Okay. Now, let us start to understand कि जो बाकी इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया वो कैसे काम करता है. फर्स्ट में हम लोगों ने नाम लिया था लिटमस पेपर का. जब लिटमस पेपर में, जब मॉइस्ट लिटमस पेपर में हम लोग एसिड डालते हैं तो इट विल कन्वर्ट ब्लू से रेड. मतलब ब्लू मॉइस्ट लिटमस पेपर विल टर्न रेड. ठीक है, ये नोट कर लो. देन methyl orange. It becomes red to orange. Sir, can you repeat litmus paper changes? ये आपको आवाज नहीं आ रहा, दोबारा पूछो. Sir, can you repeat how litmus paper changes? Which color to which color? एक मिथाइल ऑरेंज पेपर विल टर्न, लिख लो ना, सबसे अच्छा रहेगा. मिथाइल ऑरेंज पेपर विल टर्न red in acidic conditions. Turn red in acidic conditions.
एक और छोटा सा नोट लिख लो, इन बेसिक कंडीशंस और इन अ बेस it will turn orange oblique yellow. This is a small bit of information which we need to know. Next, what is methyl red? What is the color change in methyl red? देखो, किसी को पता है क्या होता है मिथाइल रेड में कलर चेंज? हेलो, देखो, मिथाइल रेड turns yellow in an acid. Yellow in an acid. नेक्स्ट कौन सा था? पीएच स्केल ना? देखो, पीएच स्केल में डिफरेंट वैल्यूज होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू. तो इफ अ सोल्यूशन इज न्यूट्रल, उसका pH वैल्यू विल बी 7. For acids, the pH value will be less than 7, and for bases, pH value will be more than 7. अगर एक एसिड का pH अराउंड 1 2 इस रेंज में होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. और अगर 5 6 7 इस रेंज में होता है, इट इज अ वीक एसिड. सिमिलरली फॉर बेसिस, अगर एक बेस का pH is around 13 14, it is a strong base. If it is around 8 9, it is a weak base. Next लिखो, phenolphthalein, it remains colorless in acid. सर आप रिपीट कर सकते हैं? Phenolphthalein remains colorless in acidic solutions. लिखो, रिलीज का कलर क्या होता है सर? वापस से बोलो प्लीज. इफ इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन तो बेसिस में कैसे हो जाता है? पिंक, बेस में वो पिंक होता है. इट्स गॉट अ लवली कलर. अगर फिनेफ्थलीन का कलर आप कभी देखोगे ना, इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल कलर. तो बेसिक सोल्यूशन में वो पिंक होता है. तो इस पेज में जो जो टर्म्स लिखा था वो हम एक्सप्लेन कर दिया. अब लेट अस गो टर्म बाय टर्म, पेज बाय पेज. अब धीरे धीरे थोड़ा समझ समझ के करते हैं. चलो, तो सबसे पहले हम लोग एसिड का बात किए थे. व्हाट इज एन एसिड? इट्स अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. हम लोग H प्लस आयंस को बोले थे कि इट इज अ प्रोटॉन. सो इन general, an acid is a substance which contains releasable H plus ion, donatable H plus ion. Next, what is a base? A base is a substance which is generally bitter in taste, खारा होता है, and
It contains OH minus in aqueous solution. It may also contain or be present in an oxide form, metal का oxide. दो तरह का oxide होता है, metal oxide, non-metal oxide. Metal oxides are generally bases and non-metal oxides are generally acids. ठीक है. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक एसिड है लेकिन जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, AlCl3. सिमिलरली एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बेस है बट नॉन मेटल से बनाया गया है इज एमोनिया, NH3. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ सॉल्ट? A salt is a compound formed. A salt is a substance formed when an acid reacts with a base. तो एक जनरल रूल है, acid reacts with base to form salt and water. Now, acids का different types को details में study करते हैं. तो acid यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो definition. It is a Latin word for acidus, which means sour. As I told you, initial understanding of acid वही था, sour substances. You can take example of vinegar, you can take example of citrus acid, milk, they are all sour in taste. यहाँ पर एक list दिया गया है of commonly used acids, commonly available acids and उनका composition. तो acetic acid is present in vinegar. Citric acid is present in citrus fruits like oranges and lemons. HCl, hydrochloric acid, is found in our gastric juice जो body में prepare होता है, एक bile product है I think. Formic acid is found in the sting of bees and lactic acid, as you know, is available in milk, sour milk, dahi में भी होता है. And the one that we also need apart from this is tartaric acid, which is present in grapes, tamarinds, apple, ये सब फ्रूट में. अच्छा, हम क्या बताया था? एसिड एक सब्सटेंस है जिसमें H+ आयन रेडिली अवेलेबल होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोग को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट भी बताया था, who said an acid is a substance which when dissolved in water forms H3O+. इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन. But this will only be formed when an acid is dissolved in water, otherwise नहीं बनेगा. Before we continue, एक बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन बट एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. अगर हम 10 जन से एसिड का नाम पूछे तो मोस्ट कॉमन आंसर जो एसिड का कोई देगा दैट विल बी HCl. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि HCl इज एक्चुअली अ गैस एंड इट इज नॉट एन एसिड. HCl जो सब्सटेंस है वो एक गैसियस सब्सटेंस है जो खुद एक एसिड है ही नहीं, मतलब गैसियस स्टेट में एक एसिड है ही नहीं. It in fact behaves like an acid only when HCl is dissolved in water. तो HCl एसिड कब बनता है? जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं. तो HCl mixes in water, dissolves in water to form H+, which further forms H3O+, and then it becomes an acid. तो HCl एक एसिड दो कंडीशन में बन सकता है, जब उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे या अंडर हाई प्रेशर HCl को कन्वर्ट कर देंगे इनटू लिक्विड. आई मीन टू से HCl एसिड दो कंडीशन में बन सकता है. वन, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर उसको अंडर हाई प्रेशर लिक्विड HCl में कन्वर्ट कर देंगे. तो गैसियस HCl इज एक्चुअली नॉट एन एसिड. Again, before we continue, let us take up some common names of popular acids. Can anybody tell me what is the common name of HCl? Muriatic acid. Very good, muriatic acid.
कहाँ मिलता है HCl? It's also known as muriatic acid. Yes, absolutely. It's also known as muriatic acid. And where is it found? Sunlight. Sunlight में muriatic acid क्या बात Oh कर रहा नहीं है? नहीं, sunlight में तो explosive हो जाता है. My bad. My question is, where can you find muriatic acid or sulfuric acid? देखो, muriatic acid is found in हाँ बोलो. तेरा कनेक्ट हो गया था. हाँ, हम common names of certain acids discuss कर रहे थे. तो what is muriatic acid? किसी को पता है कहाँ मिलता है? मतलब muriatic acid it is HCl, but मिलता कहाँ है? नहीं सर, कहाँ मिलता? ये जो वॉशरूम क्लीनर्स हम लोग यूज करते हैं ना, बाथरूम में जो एसिड्स मिलता है, उनका बॉटल को कभी खूब घुमा के देखना, उस पे लिखा हुआ रहता है म्यूरियाटिक एसिड. तो म्यूरियाटिक एसिड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन आवर हाउस होल्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वॉशरूम्स एंड यू नो होम डोमेस्टिक क्लीनिंग के लिए. दैट इज म्यूरियाटिक एसिड. ओके, नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? King of chemicals. किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड्स, यस, बट कॉमन वो तो कैटेगरी हो गया ना, उसका हाँ. कॉमन नेम Oil of vitriol. oil of vitriol. Very good. What is the meaning of the word vitriol? हाँ, गूगल कर लो. विट्रियोल मतलब होता है गुस्सा, खार, क्रिटिसिज्म, बिटर क्रिटिसिज्म. विट्रियोल का मतलब होता है किसी पे घृणा करना, किसी को, वो होता है विट्रियोल. तो ऐसा अजीब सा नाम क्यों दिया गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल? क्योंकि आप लोग एसिड अटैक्स के बारे में सुना ही होगा. ये कोई नया चीज नहीं है, इट इज एन एज ओल्ड थिंग इन ह्यूमन कल्चर. तो ये वो एसिड था जो लोगों के चेहरा के ऊपर में डाला जाता था, एंड people and doctors identified it as an oil, as a liquid which was very harmful for human skin and human body. तो वो लोग उसको नाम दिया oil of vitriol. At that point of time it was not called sulfuric acid. वो एक लिक्विड के जैसे लोग जानते थे, जिसको किसी पे डाल देने से उसका चेहरा बॉडी जल जाता है, तो they called it oil of vitriol. समझ में आया? ओके, एक और बोलते हैं. Does anybody know the name of a mixture which is capable of solving or dissolving gold and platinum के जैसे noble metals? एक mixture of acids which is so strong कि it can dissolve gold, platinum, palladium, Aqua regia. aqua regia. And what is it made up of? क्या क्या चीज का mixture है ये? HCl and HNO3. HCl and HNO3. Very good. हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. Very good. Good answer. Okay. एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, ट्रू या फॉल्स. हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स. False. False. Very good. Hydrogen is present in almost all acids या most acids. Good. Any compound containing hydrogen is an acid. False. False. तो अब किस एसिड को पानी में डालने से क्या होता है वो देखेंगे. देखो स्क्रीन में दिखाई देगा HCl. जब HCl में हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो HCl will break into H+. That H+ will dissolve in water to form H3O+. जब H2SO4 को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 2H+. दोनों H+ जाके एक एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के संग मिक्स करेगा एंड इट विल फॉर्म 2H3O+ along with SO4 2- सल्फेट आयन. सिमिलरली HNO3 को जब वाटर में डालते हैं इट विल फॉर्म H3O+ and NO3-.
ये जो तीन हम लोग अभी देखा, these are all three mineral acids. Mineral acids are the acids which do not which are not found in plants and animals, which are found in nature. Example would be HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, and so on. Acetic acid, on the other hand, is an example of an organic acid. Again हम लोग discuss करेंगे थोड़ी देर में. What is an organic acid? ये एक ऐसा substance है which is found either in human or in plant extracts. By human I mean animals. What is hydrogen ion? What is hydrogen ion? Proton, H plus. Proton. Very good answer. H plus. What happens when hydrogen ion or proton is dissolved in water? It forms an hydronium atom. Ion. Hydronium ion, very good. And what is the formula of hydronium ion? H3O plus. H3. Good. क्या वाटर एक एसिड है कि बेस है? Neutral. न्यूट्रल. वेरी गुड. वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. उसमें एसिड डालेंगे तो एसिड बन जाएगा, बेस डालेंगे तो बेस बन जाएगा. बाय नेचर इट इज न्यूट्रल. तो डू यू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ पीएच व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर वाटर? 7. वेरी गुड आंसर. गुड. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स को बहुत अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, मतलब एसिड कहां से मिला. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ categories for an acid in terms of their source: organic acid, inorganic acid. Organic acids are acids which are generally found in plants and animals. Example क्या होगा? Oxalic acid and acetic acid. इनका formulas are very important. Oxalic acid का एक और फॉर्मूला, एक और वे है फॉर्मूला को लिखने का. लिख लो H2C2O4. ऑर्गेनिक एसिड में एक और नाम लिख लो, फॉर्मिक एसिड, FORMIC. formic acid. The answer is HCOOH. ठीक है. ओके. ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो जनरली वीक एसिड्स होता है. वीक एसिड मतलब अगर आपके हाथ में गलती से नींबू या लेमन अगर लग जाए तो क्या कोई स्किन को नुकसान होगा? नहीं सर. नहीं होगा. ऑल्दो देयर आर सम पीपल जिन लोग के हाथ में नींबू का जूस लग जाए तो दे फील वेरी इची, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट उससे नहीं होगा. So such acids which are not very harmful to objects are called organic acids. जिनका इफेक्ट बहुत कम होता है उनको हम लोग वीक एसिड्स बोलते हैं. ऑन दी अदर हैंड आप लोग अगर स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते करते एक ड्रॉप ऑफ H2SO4 या HCl किसी के स्किन को टच कर जाए तो वो जगह स्किन येलो हो जाएगा, स्किन का रंग निकल जाता है, स्किन जल जाता है उस जगह पे. सो दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर. Such acids are called inorganic acids. Example would be hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3. Apart from this, हम तीन और एसिड का नाम बोर्ड पे लिख के दे रहे हैं आप लोगों को. इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना. H3PO4, H3PO3 and H3PO2. एक एक करके तीनों का नाम बताओ. H3PO4, phosphoric acid. very good. Phosphoric acid. H3PO3,
phosphorus, Phosphorus acid, absolutely correct. Last, H3PO2. Hypophosphorus acid. हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये लास्ट वाला नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं. इट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, नोट कर लो. अभी तक हम लोग जो जो एसिड का नाम लिया, मतलब HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2, these are all inorganic acids which are strong in nature, बहुत नुकसान पहुंचाता है. Although there are some inorganic acids which are not found in the human body or not formed in the human or plant body, such acids are weak in nature, but still they are inorganic acids. One such example would be H2CO3. H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. कहाँ मिलता है ये एसिड, किसी को पता है? सर लिखा है सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो. सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलता है, एब्सोल्युटली करेक्ट. In fact, some people say the soft drinks can be used as toilet cleaners. It is true actually. तो उसमें जो एसिड होता है वो H2CO3 होता है. ओके, नाउ दो नया टर्म, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स. तो मोस्टली ऑल एसिड्स शुड कंटेन हाइड्रोजन, राइट? तो दोज एसिड्स which contain hydrogen and any other element except oxygen are called hydra acids. For example, HCl, HBr, HF, HI, these are acids which contain hydrogen definitely, but they do not contain oxygen at all. Lekin there are certain substances which contain hydrogen, which contain oxygen as well, and they are acids. For example, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, H3PO2, H3PO3, all these are examples. So oxy acids क्या हुआ? This is an acid definitely containing hydrogen and also containing oxygen. Or what are hydra acids? These are acids definitely containing hydrogen but not containing oxygen at all. Clear हुआ? Now, acid को हम लोग categorize करेंगे in terms of concentration. What is the meaning of the word concentration? Anyone? High proportion. Yes, you can say high proportion. Good answer. Anything else? Any word comes to your mind when you think of it? Solution. मेरे दिमाग में एक वर्ड आता है डेंसिटी. किसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है. तो अगर एक एसिड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे, सो इट बेसिकली मींस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द एंटायर एसिड. आई मीन टू से, अगर एक एसिड का मिक्सचर का बात करते हैं जैसे HCl, आई टोल्ड यू HCl विल बिहेव लाइक एन एसिड जब उसमें पानी को मिक्स करेंगे. तो अगर पानी का क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा और HCl का क्वांटिटी कम हो जाएगा, दैट टाइप ऑफ HCl इज कॉल्ड डाइल्यूट HCl. लेकिन अगर एसिड का क्वांटिटी ज्यादा होगा और वाटर का क्वांटिटी कम होगा, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl. तो द वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स एसिड ज्यादा, वाटर कम, पानी कम, एंड द वर्ड डाइल्यूट मीन्स पानी ज्यादा, एसिड कम. ठीक है. नाउ व्हाट इज, यहां तक क्लियर हुआ?
हाँ नेक्स्ट जो दो टर्म हम लोग सीखेंगे, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। स्ट्रॉन्ग और वीक को, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिसको पानी में डिसॉल्व करने से वो कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक कर जाए। तो इफ आई गिव यू 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl and you mix it with water, HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स 95 मॉलिक्यूल्स, 90 मॉलिक्यूल्स, मे बी 98 मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक डाउन। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और इफ आई गिव यू अ वीक एसिड, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, विनेगर, उसको अगर पानी में मिलाएंगे तो इफ देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स दैट आई हैव गिवन यू, ओनली 5 या 10 या 3 या 2, a very small quantity of acids will break. तो डाइल्यूट एसिड कौन होता है? When acid is less in quantity and water is high in quantity. Concentrated acid क्या होता है? When water is high in quantity, sorry, concentrated acid होता है when acid is high in quantity, water is less in quantity. Strong acid क्या होता है? An acid which almost completely ionizes in water. And weak acid क्या होता है? An acid which does not completely ionize in water. A very small part of it ionizes in water. यहां तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन? I'll give you 2 minutes to think over it. फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। 2 minutes. Any questions from anybody? Okay. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इट बेसिकली मीन्स
कि how many percentage या how much percentage of an acid actually got broken down. How much percentage of an acid actually gets broken down. That is called degree of ionization. एक एसिड का अगर 30% से कम आयनाइज करे तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड, लेकिन अगर किसी एसिड का 30% से ज्यादा आयनाइज कर गया हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी एसिड का 5% से कम आयनाइज किया तो वेरी वीक एसिड, किसी एसिड का 90% से ज्यादा आयनाइज कर गया तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज नोन एज basicity of an acid. Basicity of an acid. So let us write down the formulas of three important acids. इसको जब ब्रेक करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? H plus and Cl minus. H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? H3PO4 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? So an acid which gives one H plus ion is called a monobasic acid. क्या बोलते हैं? Monobasic acid. So HCl is an example of a monobasic acid. An acid which gives two H plus ions is known as a dibasic acid. Dibasic acid. An acid which gives three H plus ion is H3PO4 and it is known as tribasic acid. Monobasic acid, dibasic acid and tribasic acid. Now, let us take up some examples of monobasic acid. Examples of monobasic acid are HCl, HBr, HNO3, HI, CH3COOH. These are all acids which will give a single hydrogen ion on dissociation. So they are called monobasic acid. Similarly, a dibasic acid is an acid which gives two H plus ions. इसका examples बहुत important है. H2SO4, oxalic acid, sulfurous acid H2SO3 and carbonic acid H2CO3. They are all dibasic because ये पानी में dissolve करके 2 H plus ion देता है which will further form 2 H3O plus ion. Tribasic acid. This is an acid which on dissociation in water gives 3 H plus ions. Example, phosphoric acid H3PO4 and citric acid. Citric acid का formula is C6H8O7. You need not know this. It will be okay अगर आप नहीं जानते हैं तो चलेगा. Okay, आगे बढ़ते हैं. We need to understand a new term that is a normal salt. What is a normal salt? And along with that, what is an acid salt? तो देखो, let us take up two examples of salts. एक example होता है Na2SO4, sodium sulfate.
और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है NaHSO4 which is known as sodium bisulfate. Sodium sulfate is a normal salt. Sodium bisulfate is a acid salt. ऐसा क्यों? एक सॉल्ट जिसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है which is Na2SO4, कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, that salt is called a normal salt. लेकिन a salt which contains a hydrogen which is replaceable, such a salt is known as an acid salt because उसमें एसिड का कंपोनेंट है हाइड्रोजन. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट करके रखो. ऑल्दो हम लोग आगे जाके जब सॉल्ट वाला पोर्शन करेंगे तब इस चीज को रिविजिट करेंगे. This is the structure of H3PO4. Right now you don't need to worry about the structure. Our next chapter after this would be chemical bonding. वहां पर हम लोग each and every compound का स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करेंगे, तब हम एक्सप्लेन करेगा. फॉर द टाइम बिंग बस खाली ये समझ लो कि ये स्ट्रक्चर क्या है और इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. तो 3 एसिड का हम लोग बात किए थे. पहला H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ये हो गया H3PO4. इसमें 3 बार OH है, ध्यान से देखो. नाउ ये चीज को समझ लो, अगर एक एसिड में OH बॉन्ड है तो वो OH बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है दैट इज रिप्लेसेबल, एंड देयरफॉर यहां पर ऐसा 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो इट इज ट्राई बेसिक. याद रहेगा? सर आप एक बार ये पार्ट रिपीट कर सकते हैं क्या? श्योर. हम एक एसिड लिया H3PO4 और उसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया यहां पर. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे आई रियलाइज्ड कि इस एसिड में देयर आर 3 बॉन्ड्स ऑफ OH. जब भी एक एसिड में एक OH बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का H प्लस कैन बी रिप्लेस्ड एंड दैट लीड्स टू एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. तो H3PO4 में ऐसा 3 OH है, तो 3 जगह से H निकल सकता है उसमें से, तो उसका बेसिसिटी इज इक्वल टू 3 एंड हेंस इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड. नेक्स्ट इज H3PO3. इसका स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. फॉस्फोरस, OH, OH, H and oxygen. Now you will realize कि यहाँ पर 2 बार OH है और 1 बार सिर्फ H है. Now अगर OH होगा तभी H प्लस रिलीज होगा, I told you, and therefore इसका basicity is 2. It is dibasic. Basicity is 2. ये वाला जो H है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस के संग जुड़ा हुआ है एंड देयरफॉर वो रिप्लेसेबल नहीं है, वो कभी भी टूट के बाहर नहीं निकलेगा. Now last structure H3PO2. इसमें सिर्फ एक OH है, तो कितना हाइड्रोजन बाहर निकलेगा? 1. तो दिस एसिड इज मोनोबेसिक. ठीक है? Now how do you prepare an acid? तो there are various ways of preparing an acid. सबसे पहले होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बाय सिंथेसिस, मतलब दो चीज को कंबाइन करके बना दिया. कंबाइन करके जब हम लोग बनाते हैं तो जो तरह का एसिड बनता है इट इज कॉल्ड
binary acid. It is called binary acids. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के संग हम क्लोरीन को रिएक्ट कराएं तो H2 plus Cl2 will form HCl. यहाँ पर दो चीज आपस में डायरेक्टली कंबाइन किया और प्रोडक्ट बन गया. ये जो प्रोसीजर होता है इट इज नोन एज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन, एंड इसमें जो एसिड बनता है दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी एसिड. नेक्स्ट, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू फॉर्म एन एसिड. मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन. So when I burn carbon in oxygen, I'll get CO2. This CO2 dissolves in water to form H2CO3, which is carbonic acid. तो पहले हम लोग क्या किया, एक नॉन मेटल को बर्न किया इन ऑक्सीजन, एक एसिडिक ऑक्साइड मिला. अगर उस एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो मुझे एसिड मिल जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं. सल्फर था, उसको ऑक्सीजन में बर्न किए, वी गॉट SO2. SO2 को पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा H2SO3. तो देखो ये भी एक एसिड है. तो कोई भी नॉन मेटल को जब हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करते हैं वी गेट अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज एन एसिडिक ऑक्साइड. उस एसिडिक ऑक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है व्हाट वी फाइनली गेट इज एन एसिड. दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो यहाँ पर देखो अलग अलग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड दिया हुआ है जिनको पानी में डिसॉल्व करेंगे एंड रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बनेगा. Out of these reactions, the most important ones are the last two. P2O5 plus water will give H3PO4 and N2O5 plus water will give HNO3, nitric acid. वैसे N2O5 is also known as nitrogen pentoxide and P2O5 is also known as phosphorus pentoxide. The third method of preparation of an acid is जब एक एसिड के संग एक और नॉन मेटल रिएक्ट करता है. तो एक एसिड के हेल्प से हम लोग दूसरा एसिड बनाने का कोशिश करते हैं. तो मेरे पास एक एसिड है, मान लो HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके संग में सल्फर रिएक्ट करा देंगे तो इट विल गिव अस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. तो बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ इट इन अ मैनर कि ये सल्फर नाइट्रोजन को रिप्लेस करके सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया. सिमिलरली अगर एक फास्फोरस नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्ट करेगा तो इट विल बिकम H3PO4. वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शंस. नेक्स्ट इज बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड. मेरे पास NaCl है, हम NaCl में ऐड कर दिया H2SO4, partial displacement हुआ and we form NaHSO4 along with HCl. and NaNO3 में अगर हम H2SO4 देंगे तो ध्यान रखना NaNO3 is a salt. उसमें जब H2SO4 देंगे you will again form NaHSO4 which is an acid salt और संग में acid HNO3. तो आप बाय डिस्प्लेसमेंट वाला एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? ये वाला बाय डिस्प्लेसमेंट, हाँ. जब एक सॉल्ट के संग एक एसिड रिएक्ट करता है तब एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एंड NaCl और H2SO4 के रिएक्शन के दौरान you will get NaHSO4 and HCl. यहाँ पर एक चीज नोटिसेबल है, जो एसिड बनेगा
that will be more volatile than जो acid आप use किया था. What do you mean by the word volatile? A more volatile substance has less boiling point. वो substance जिसका boiling point कम होता है, जो easily vapor बन के हवा में उड़ जाता है, is more volatile. Next, properties of certain acids. Already हम लोग discuss कर लिए कि they are sour in taste, खट्टा होता है. कुछ acids are so corrosive कि taste करना उसको advisable नहीं है. You should not try and even taste them. Acids sometimes can be categorized like this as well in terms of their physical state. कौन सा solid है, कौन सा liquid है, कौन सा किस state में है. तो solid state में acid it's a bit difficult to visualize because आप लोग generally acid को liquid state में ही देखा होगा. तो examples of those are very important. Boric acid, oxalic acid, tartaric acid, citric acid and phosphoric acid. Similarly, जो liquid state में acid है, उनका example would be acetic acid, formic acid, carbonic acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfurous acid and finally sulfuric acid. एक चीज बस ध्यान रखना कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बॉयल ही नहीं करेगा. ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी वो चीज नोटिस किया होगा. ये लेस वॉलेटाइल, ये सब है हाईली वॉलेटाइल. टेस्ट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया. नाउ इफेक्ट ऑन स्किन ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट लीव्स स्टेन्स ऑन द स्किन, हाईली कोरोसिव एंड पेनफुल ब्लिस्टर्स छोड़ देता है स्किन के ऊपर में. Acids also have the property to change the color of the indicators. हम लोग अभी डिस्कस किए थे इंडिकेटर्स के बारे में, कलर चेंज क्या होता है. We have already discussed what are olfactory indicators. इसका अलग अलग स्पेलिंग है, कहीं पे OL मिलता है, कहीं पे AL मिलता है, so both are okay. The examples as given are onion, vanilla, clove. Clove मतलब होता है long. The color changes out here. Certain important reactions of acids. एक एसिड रिएक्ट करेगा विद अ मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अगेन एक एसिड रिएक्ट करेगा विद अनदर मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड सो ऑन. तो व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल इट गिव्स अ सॉल्ट अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, जब वो एक ऑक्साइड के संग रिएक्ट करेगा, एन एसिड रिएक्ट्स विद एन ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. तो ये रिएक्शन में देखो H2 will combine with oxygen to form H2O and you will be left behind with copper sulfate. नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के संग रिएक्ट करेंगे, हम लोगों को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2. So what you can conclude from here is, if a carbonate reacts with an acid, it will definitely liberate carbon dioxide. Similarly, when a bicarbonate, मतलब HCO3, calcium bicarbonate reacts with HCl, it will again form CO2 gas. Now, calcium sulfite with HCl, तो यहाँ पर SO3 था, so you will get SO2 gas as a product. Calcium chloride, water and SO2. Again a very important cheese. Reaction with sulfides. जब जिंक सल्फाइड HCl के संग रिएक्ट करेगा, it will form zinc chloride and H2S. ये रिएक्शन को स्टार मार्क दो, it is very important. In fact, all reactions जिनमें H2S as a product form होता है are very important in terms of your ICSE exam. Very, very important. Reaction with सर क्या? nitrates. वो रिएक्शन जिनमें H2S is formed as a product, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
ये दोनों रिएक्शन को मार्क करो, आईसीसी में आने का हाई चांस है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स। अगर लेड नाइट्रेट HCl के संग रिएक्ट करेगा तो देखो PbCl2 बन जाएगा लेड क्लोराइड और HNO3। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके ऊपर हम लोग फर्दर अगेन स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक is what is acid rain. An acid rain takes place when thunderstorm and lightning take place in the atmosphere. एसिड रेन के दौरान हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि होता कैसे। मान लो बहुत जोर लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करेगा टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड will react with oxygen to form NO2 gas. ये रिएक्शन लाइटनिंग के हेल्प से होता है। जो NO2 बना वो वाटर में मिक्स करेगा to form HNO3. This is how nitric acid is formed. यहाँ तक कोई डाउट? Okay. बस I'll take one more minute. Uses of some fall on the and the plants that are being cultured. तो क्या होता है जब ये एसिड आके ऊपर से गिरता है, मान लो किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर, एंड द मॉन्यूमेंट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का बना है, थिंक ऑफ ताजमहल। तो जब उसके ऊपर ये गिरेगा तो एसिड रिएक्ट्स विद अ सॉल्ट टू फॉर्म CO2 गैस एंड अनदर सॉल्ट। तो अल्टीमेटली इसके चलते वो जो बिल्डिंग है, जो मॉन्यूमेंट है, इट विल स्टार्ट गेटिंग डिटीरियोरेटेड, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। आफ्टर अ टाइम उसका जो अपीयरेंस है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज व्हाई एसिड रेन्स आर वेरी हार्मफुल। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन एसिड्स, यूजेस ऑफ सर्टेन एसिड्स। तो सबसे पहले है बोरिक एसिड। व्हाट इज बोरिक एसिड यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड फॉर आई वॉश, एंटीसेप्टिक। आई वॉश मतलब हम लोग आई ड्रॉप्स डालते हैं ना, उनमें यूज होता है। साइट्रिक एसिड क्या काम में आता है? फूड प्रिजर्वेशन, विनेगर जैसा सब्सटेंस जिससे खाना खराब नहीं होता है। ऑक्जेलिक एसिड इंक का दाग रिमूव करने में काम आता है, इंक स्टेन रिमूवर। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में काम आता है। टार्टरिक एसिड will be useful in making baking powder. Acetic acid विनेगर में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेंजोइक एसिड मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है और मेडिसिन बनाने में काम आता है। नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। एंड phosphoric acid is used in making fertilizers. In fact, phosphorus and nitrogen are two elements, two non-metals, which are very, very useful in making fertilizers. Okay. Does anybody have any question?